بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گرامر کا انتہائی اہم لیکچر، انتہائی اہم چیزیں یہ آپ لوگوں نے گرامر میں دیکھی ہوں گی، اور کچھ ایسے نئے آئٹم تھے۔ ان کا لیکچر ہمارا پہلے ریکارڈ تھا، لیکن دوبارہ ریکارڈ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو فیڈرل کے ماڈل پیپر آئے ہیں ان میں کچھ ایسی چیزیں انٹروڈیوس ہوئی ہیں جو آپ کی ابھی تک گائیڈ میں بھی موجود نہیں ہیں، شرح سرمایہ اردو میں یا باقی جو گائیڈ موجود ہیں اس میں ابھی تک وہ چیزیں انٹروڈیوس نہیں ہو سکی ہیں۔ ٹھیک ہے، اصناف سخن جو چیز بولی جائے گی میں کوشش کروں گا لکھواؤں گا کم، بولوں گا زیادہ، اور وہی چیز لکھواؤں گا بولوں گا جس میں آپ کا کم از کم جو ہے آبجیکٹو کا پورشن بآسانی نکل جائے۔ اصناف سخن ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، لکھیے گا۔ اصناف صنف کی جمع ہے، اصناف صنف کی جمع ہے، صنف کی جمع ہے جس کے معنی ہیں قسم، جس کے معنی ہیں قسم، جس کے معنی ہیں قسم، قسم کا مطلب ٹائپ۔ ٹھیک ہے جی، اصناف سخن سے مراد شاعری کی اقسام ہیں۔ اگلی لائن لکھیے گا، اصناف سخن سے مراد شاعری کی اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے، کتنی ٹائپس ہوتی ہیں شاعری کی؟ اصناف سخن سے مراد شاعری کی اقسام ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب شاعری کتنی طرح کی ہو سکتی ہے یہ چیزیں ہم نے اصناف سخن میں پڑھتی ہیں۔ اصناف آبجیکٹو کیا بن سکتا ہے؟ اصناف کس کی جمع ہے؟ صنف کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ قسم مطلب ٹائپ۔ ٹھیک ہے، اور اصناف سخن سے کیا مراد ہے؟ اصناف سخن سے مراد شاعری کی اقسام ہے۔ سمجھ آ گئی؟ سب سے پہلی شاعری کی قسم آپ کے پاس حمد۔ زندگی ساری ہم پڑھتے بھی آئے ہیں، سنتے بھی آئے ہیں، دیکھتے بھی آئے ہیں۔ حمد بیسیکلی کیا ہے؟ حمد عربی جو بات لکھوائی جائے گی لکھیے گا، حمد عربی زبان کا لفظ ہے، حمد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے تعریف بیان کرنا۔ حمد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے تعریف بیان کرنا۔ حمد عربی زبان کا لفظ ہے، آبجیکٹو بن سکتا ہے کس زبان کا لفظ ہے؟ حمد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے تعریف بیان کرنا۔ ایسی نظم یا کلام، ایسی نظم یا کلام، یا ایسا کلام یا نظم، ایک ہی بات ہے، ایسی نظم یا کلام جس میں شاعر اللہ کی تعریف بیان کرنے کی کوشش کرے۔ بڑی پیاری ڈیفینیشن لکھوا رہا ہوں، ایسی نظم یا کلام جس میں شاعر اللہ کی تعریف بیان کرنے کی کوشش کرے۔ ہم اللہ کی تعریف بیان نہیں کر سکتے، ہم کوشش کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی شان بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی شان بہت زیادہ ہے، لیکن شاعر کوشش کرتا ہے۔ آپ کی بک میں لکھا ہوا کیا ہوگا؟ جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ میں یہ بات نہیں مانتا سر، میرا دماغ یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف بیان نہیں کر سکتے، اس کی شان بہت زیادہ ہے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایسی نظم یا کلام جس میں شاعر اللہ کی تعریف بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم چھوٹی سی کوشش کر سکتے ہیں سر۔ وہ اس نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس نے ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے۔ نعت، دوسری قسم آپ کے پاس شاعری کی کون سی ہے؟ نعت۔ ایسی نظم یا کلام، ایسی نظم یا کلام، ایسی نظم یا کلام جس میں حضور خاتم النبیین، جس میں حضور خاتم النبیین، جس میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، کی تعریف بیان کی جائے۔ اوپر یہ لکھنا نعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے تعریف بیان کرنا۔ یہ بات چھوڑ رہے ہیں شاید ہم، یہ لکھیے گا کہ نعت عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ بھی آبجیکٹو پہ پوچھا جا سکتا ہے، نعت کس زبان کا لفظ ہے؟ نعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی ہے تعریف بیان کرنا۔ ایسی نظم یا کلام جس میں شاعر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرے، اس کو ہم نعت کہتے ہیں۔ کتنی پیاری نعت لکھی، خوش خصال ہو، خوش خیال ہو، خوش خبر، خیر البشر حفیظ صاحب نے بڑی پیاری نعت سرکار کی لکھی۔ ٹھیک ہے، اور مطلب سرکار کے ٹائم پہ نعت گو شاعر حسان بن ثابت سرکار کے دربار کے شاعر بڑی پیاری شاعر نعت لکھتے ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِهِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ پھر اس کے بعد تیسری جو اس کی اقسام ہے آپ کے پاس وہ کیا ہے؟ قصیدہ۔ قصیدہ
कसीदा क्या होता है बच्चे? कसीदा, कसीदा की हेडिंग दीजिएगा, कसीदा अरबी जुबान का लफ्ज़ है। सर मैं ये चीजें आपको बोल सकता था, आपने गाइड उठाए और वहां पे 10-10 लाइनों की डेफिनेशन रटे। मैं 10 लाइनों पे आपको चीजें ही खत्म करवा चुका हूँ। कसीदा अरबी जुबान का लफ्ज़ है, कसीदा अरबी जुबान का लफ्ज़ है। कसीदा कसद से निकला है, कसीदा कसद से निकला है, कसद। हम आप नहीं बोलते यार आज आपने कैसे यहाँ पे आने का कसद किया, कस करना, इरादा करना। कसीदा कसद से निकला, काफ स्वाद दाल, ये कसीदा कसद से निकला है, जिसके मानी है इरादा करना, जिसके मानी है इरादा करना। ऐसी नज़म या कलाम, जिसके मानी है इरादा करना, ऐसी नज़म या कलाम जिसमें किसी जिंदा शख्स की तारीफ बयान की जाए, जिसमें किसी जिंदा शख्स की तारीफ बयान की जाए, इसको हम कसीदा कहते हैं। ऐसी नज़म या कलाम जिसमें किसी जिंदा शख्स की तारीफ बयान की जाए, इसको हम कसीदा कहते हैं। अच्छा जी, साथ एक और ऑब्जेक्टिव का आइटम लाजमी लिखिएगा। कसीदा के 4 अरकान। पूछा जा सकता है कसीदा के अरकान कितने हैं? कसीदा के 4 अरकान हैं। कसीदा अरकान कौन से? वो अगली डीप बातें हैं, बहुत ज्यादा डीप उनको लेके जाने की जरूरत नहीं, आपके लिए इतना इनफ है, आपके लेवल के लिए कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आपने बता देना कसीदा के 4 अरकान है। ठीक हो गया। एक और जो नई चीज इंट्रोड्यूस हुई वो क्या हुई है? हिज्जो। ये हिज्जू नहीं है, हिज्जो पढ़ना है, जो का दाना नहीं होता, जो, हिज्जो। ये आज से पहले आपने नहीं सुनी, देखी होगी, ये आपके गाइड में भी मौजूद नहीं। हिज्जो, ये उस फेडरल के मॉडल पेपर में आया हुआ है। हिज्जो क्या होता है? ठीक है जी। ऐसी नज़म या कलाम, ऐसी नज़म या कलाम जिसमें किसी की मुखालफत पर, जिसमें किसी की मुखालफत पर, ऐसी नज़म या कलाम जिसमें किसी की मुखालफत पर उस पर तंज किया जाए। जिस कोई आपकी मुखालफत करे, आप उस पर तंज करना शुरू कर दें। ऐसी नज़म या कलाम जिसमें किसी की मुखालफत पर उस पर तंज किया जाए या मजाक उड़ाया जाए, या मजाक उड़ाया जाए। आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, और किस फॉर्म में उड़ा रहे हैं? इन दी फॉर्म ऑफ शायरी। ठीक है जी, शायरी की फॉर्म में आप किसी का मजाक जब उड़ाते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? हिज्जो। क्या चीज है? हिज्जो। नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है सर। हिज्जो एक शायरी की किस्म है। ऐसी नज़म या कलाम जिसमें किसी की मुखालफत पर उसकी क्या की जाए? उसका मजाक उड़ाया जाए। उसको मुखालफत, वो आपकी मुखालफत करे और आप उसका मजाक उड़ाएं, इसको क्या कहते हैं? हिज्जो का नाम दिया जाता है। इसके बाद मनाजात। अब ये भी नहीं याद कि क्या नाम था उसका, जिस शख्स को मांगा था मनाजात की मदद। मनाजात क्या होता है? ऐसी नज़म या कलाम, ऐसी नज़म या कलाम जिसमें अल्लाह को हाजिर नादर जानते हुए, ऐसी नज़म या कलाम जिसमें अल्लाह को हाजिर नादर जानते हुए, हाजिर नादर जानते हुए उससे दुआ की जाए। आप नहीं मनते मांगते, मनाजात मांगते। मनाजात होती हैं बेसिकली दुआएं करते हैं अल्लाह के आगे। ठीक है जी, कि ये बेसिक यार फलाना मेरे फलां मसला है, या अल्लाह वो पूरी कर दे, तो इसको बेसिकली मनाजात कहा जाता है। दुआ और मनाजात में कोई फर्क नहीं, बेसिकली मनाजात दुआ ही होती है। ठीक है जी। ऐसी नज़म या कलाम जिसमें क्या होता है? शायर अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए उससे दुआ करता है। ठीक हो गया, दुआ की जाए। अच्छा, ये इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नसर और नज़म दोनों की शक्ल में हो सकती है, दोनों सूरतों में हो सकती है। मनाजात आप नसर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, और आप शायरी लिख के भी उसकी अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये नसर और नज़म दोनों सूरतों में हो सकती है। ठीक है जी, ये नसर और नज़म दोनों सूरतों में हो सकती है। फिर इसके बाद मरसिया। मरसिया, मरसिया बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। ये मरसिया बहुत दफा आया भी है। मरसिया, मीर अनीस ने कहा था मातम शराब भी होते हैं क्या खुद गर्ज कतील, अपने गमों पे रोते हैं लेकर किसी का नाम। मरसिया अरबी जुबान का लफ्ज है, लिखिएगा। मरसिया अरबी जुबान का लफ्ज है। मरसिया अरबी जुबान का लफ्ज है।
मरसिया रिसा से निकला है, रिसा रे सा लिप्सा, रसा से निकला है, मरसिया रसा से निकला है, मरसिया रिसा से निकला है, जिसके मानी है मुर्दे को रोना, जिसके मानी है मुर्दे को रोना। एक शख्स मर जाए ना, ठीक है जी, मुर्दे को रोना मतलब एक हम मरे हुए शख्स को रोना, उसकी तारीफ बयान करना, ये मरसिया होता है। आप देखें आजकल तो मतलब फौजियों पे भी ये फैशन है, तो अल्लाह पाक माफ करे। वैसे मुर्दे को हम रोते हैं 15-20 मिनट बाद, अपनी बातों में मशगूल हो जाते हैं, लेकिन रोते रोते भी हम उसकी मतलब इतनी अच्छाई बयान कर देते हैं कि जो लाइक हुआ कभी नहीं करती। मतलब रोते रोते हम कह देते हैं यार अब मेरे साथ कॉल पे बात कौन करेगा, तू मुझे फलाने टाइम पे कॉल करता था। ये मतलब मैं आंखों देखा हाल या कानों सुना हाल है। तो ये बेसिकली मरसिया की एक टाइप है। मरसिया का मतलब क्या है? मुर्दे को रोना। ऐसा कलाम लिख लीजिएगा, ऐसा कलाम जिसमें मरने वाले शख्स की तारीफ बयान की जाए, ऐसा कलाम जिसमें मरने वाले शख्स की तारीफ बयान की जाए, ऐसा कलाम जिसमें मरने वाले शख्स की तारीफ बयान की जाए, ऐसा कलाम जिसमें मरने वाले शख्स की तारीफ बयान की जाए। और ऑब्जेक्टिव का एक और आइटम यहां से आता है, मरसिया के कितने अरकान है? तो लिखिएगा मरसिया के 9 अरकान है। कितने अरकान है सर? मरसिया के 9 अरकान है। मरसिया के 9 अरकान है, ठीक है जी। फिर लिखिएगा मसनवी, 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 ठीक है जी। मसनवी अरबी जुबान का लफ्ज है। रूमी ने नहीं मसनवी रूमी लिखी थी। मसनवी अरबी जुबान का लफ्ज है, मसनवी अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी हैं दो। क्या? दो, टू। दो नहीं होता जिसको हम टू बोलते हैं इंग्लिश में। मसनवी अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी हैं दो, ठीक है जी। ऐसी नज़म जो 2 मिसरों पर मुश्तमिल हो, ऐसी नज़म जो 2 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसको मसनवी कहा जाता है। ऐसी नज़म जो 2 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे मसनवी कहा जाता है। ऐसी नज़म जो 2 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे मसनवी कहा जाता है। फिर इसके बाद मनकबत। आपने सुना देखा होगा कि मौला अली की शान में मनकबत बहुत ज्यादा पढ़ी जाती, लेकिन मनकबत लाजमी नहीं है कि अली की शान में ही हो। किसी भी साहबी और अल्लाह के वली की बुजुर्गान दीन की शान में आप ऐसी नज़म लिख लीजिएगा, ऐसी नज़म जो किसी वलीउल्लाह, जो किसी ऐसी नज़म या कलाम, दोनों बातें लिख लें, ऐसी नज़म या कलाम जो किसी सहाबी या वलीउल्लाह की शान में लिखी जाए। ऐसी नज़म या कलाम जो किसी सहाबी या अल्लाह के वली की शान में लिखी जाए। ऐसी नज़म या कलाम जो किसी सहाबी या अल्लाह के वली की शान में लिखी जाए। ऐसी नज़म या कलाम जो किसी सहाबी या अल्लाह के वली की शान में लिखी जाए। फिर इसके बाद नोहा। नोहा आपने सुना होगा, नोहे की एक किस्म आप हर साल सुनते हैं अपने शहर में, ठीक है। नोहा, नोहा क्या चीज है? नोहा के लफ्जी मानी है मातम करना, ठीक है जी। नोहा के लफ्जी मानी है मातम करना। बेसिकली मातम की एक टाइप होती है, नोहा मातम करना ही होता है, ठीक है। नोहा। फिर इसके बाद एक नज़म है जिसको हम शेर आशूब कहते हैं, शेर आशूब, ठीक है जी, शेर आशूब। ऐसी नज़म जिसमें किसी शेर, ऐसी नज़म जिसमें किसी शहर या मुल्क की तबाही और बर्बादी का जिक्र किया जाए। ऐसी नज़म जिसमें किसी शहर या मुल्क की तबाही और बर्बादी का जिक्र किया जाए, इसको हम क्या कहते हैं जी? शहर आशूब। ऐसी नज़म जिसमें किसी शहर या मुल्क की तबाही और बर्बादी का जिक्र किया जाए। फिर इसके बाद मुसल्लस। मुसल्लस मीम सीन लाम से,
मुसल्लस, मीम सा लाम सा, मुसल्लस ऐसी नज़म जो 3 मिसरों पर मुश्तमिल हो, ऐसी नज़म जो 3 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। आपको पता है एक होता है मिसरा, 2 मिला के शेर बन जाता है, और जब वो 3 हो जाएं तो उनको हम मुसल्लस कहते हैं। ठीक है जी। ऐसी नज़म या ऐसी नज़म जिसका हर बंद 3 मिसरों पर मुश्तमिल हो, ये बात लिखना ज्यादा बेहतर है। ऐसी नज़म जिसका हर बंद 3 मिसरों पर मुश्तमिल होता है, ये लिखना ज्यादा बेहतर है। ऐसी नज़म जिसका हर बंद 3 मिसरों पर मुश्तमिल होता है, उसको मुसल्लस कहते हैं। ठीक है जी। मुरब्बा, ये इसमें से एक एमसीक्यू 101% आएगा। अभी ही पेपर बना नहीं है, बनाने वालों ने बनाया नहीं है। ये जो 4 बातें यहाँ लिखवाऊंगा, मेरे से अभी स्टाम्प पे लिखवा लें, उनमें से एक एमसीक्यू आएगा। मुसल्लस ऐसी नज़म जिसका हर बंद 3 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। मुरब्बा ऐसी नज़म जिसका हर बंद 4 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। अरबा 4 से निकला है। ऐसी नज़म जिसका हर बंद 4 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। मखमस, मखमस ऐसी नज़म जिसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। ऐसी नज़म जिसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। ऐसी नज़म जिसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद मुसद्दस, ऐसे याद रखना 3 4 5 6। ऐसी नज़म जिसका हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। ऐसी नज़म जिसका हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो, उसे हम मुसद्दस कहते हैं। ऐसी नज़म जिसका हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो, उसे हम मुसद्दस कहते हैं। और इसके बाद आखिरी चीज लिख लें, रुबाई। रुबाई, रुबाई क्या होती है जी? रुबाई ऐसी नज़म जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल हो, हर बंद नहीं, वो नज़म ही 4 मिसरों की होगी, रुबाई लिखी जाती है। ठीक है जी। ऐसी नज़म जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल हो, उसे रुबाई कहा जाता है। उसे रुबाई कहा जाता है। 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आइटम, 17 ही है। उसे रुबाई कहा जाता है। ये बेसिकली आपके पास असनाफे सुखन थे। इसके अलावा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 3 चीजें हैं, उनमें से भी एमसीक्यू बन सकता है। वो जब हम नोट्स हमारे रिटन फॉर्म में आएंगे, उसका कंपोजिंग फॉर्म में, तो वो इंशाल्लाह लिखे हुए होंगे। जिसमें से एक सुन लें, पाबंद नज़म। एक है पाबंद नज़म, एक है आज़ाद नज़म, और एक है नज़्म मारा। वो अपने अपने पास नोट नहीं करने। पाबंद नज़म क्या होती है? बेसिकली जिसमें काफी और रदीफ की पाबंदी की जाती है। ठीक है। कि देखें आजकल ना, आपने सुना होगा, मतलब ऐसे अजीबोगरीब, ऐसे वायात किस्म के शेर सुनने को मिलते हैं। ठीक है जी। जिसका ना कोई वजन होता है और ना जिसका कोई काफी रदीफ होता है। ठीक है। वो बेसिकली कौन सी नज़म होती है? आज़ाद नज़म। ठीक है। जिसका दिल करता है बूथा उठाता है और वो नज़म लिखने बैठ जाता है, जिस नज़म का सर पैर ही नहीं होता। ठीक है। ना उसमें कोई बेर होता है, बहर से मुराद उसके ना कोई मिसरे की वजन ही नहीं होता। बेर बेसिकली वजन होता है। ठीक है जी। अब देखें ना, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि शेर में वजन नहीं है, शेर बेवजना करेंगे किसी काम का नहीं है। ठीक है जी। अब देखें, अब ये शेर में एक लिख के आपको बताता हूँ। ये शेर को याद रखें, शेर को वजन शेर का चेक किया करें। अगर शेर का वजन नहीं होगा, आप शेर गलत लिख रहे हैं, उसमें कोई गलती कर रहे हैं। अब देखिए शेर एक इतना प्यारा उसने लिखा, कहता है उसको देखा तो मैं समझा, हो सकता है, ये मेरे माइंड में फिर बदी आ गया, लेकिन जो हम मतलब की एग्जांपल लिखेंगे तो ये लिखेंगे, उसको देखा तो मैं समझा, हो सकता है। ठीक है। एक इंसान भी सारी दुनिया। अब देखें शेर बेसिकली बिल्कुल लग रहा है कि एक नसर टाइप है, लेकिन वजन चेक करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लफ्जों पे मुश्तमिल है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तकरीबन 7 8 लफ्ज, 5 7 8, तो मतलब 8 9 का बेहर बन रहा है, वजन बन रहा है। वजन फिर भी है,
اور دیکھیں وہ بھی بن رہا ہے کافی ردیف، ردیف ہو سکتا ہے، سمجھا دنیا، وزن ہے نا، کافیہ بھی ہے، ردیف بھی ہے، شعر میں وزن بھی ہے، ایک عام سا شعر ہے، کوئی اتنا ہائی پروفائل شعر بھی نہیں ہے، لیکن وزن ہے۔ اب شعر ہے شام تمہارے بن آتی ہے، اپنے آپ سے گھن آتی ہے، اب 4 باتیں، شام تمہارے بن آتی ہے، اپنے آپ سے گھن آتی ہے، دیکھیں اس نے جوڑا وزن کتنا برابر کیا۔ اب ایسا شعر آپ لکھ لیں گے جو بے وزنہ ہوگا، اس شعر کی نہ کوئی وقت ہے، اس کا نہ کوئی سر ہے، اس کا نہ کوئی پیر ہے، تو ایسی نظم جو بغیر بحر کے ہو، جس میں کافی ردیف کی پابندی نہ ہو، وہ آزاد نظم ہوتی ہے۔ ایسی نظم جس میں کافی ردیف کی کسی بحر کی پابندی کی جائے، یہ بیسیکلی آزاد نظم نا، آج سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ جو ابھی 21ویں صدی کے شاعر آئے نا، لائک مطلب علی دریون ہو گیا یا آفی شافی ہو گیا، تو مطلب یہ ایسے فضول سے شاعر ہیں کہ انہوں نے اس کو زیادہ پروان چڑھایا۔ تو آزاد نظم کو پروان چڑھانا میں نہیں سمجھتا، میرا مائنڈ میں یہی کہتا ہے کہ وہی نظم وہی ہے سر، جس کا بحر برابر ہو، جس میں وزن ہو۔ جن باتوں میں وزن نہیں ہوتا وہ پھر نظم نہیں ہوتی، وہ نثر بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر نثر ہوتی ہے لیکن وہ نظم نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ دیکھیں استاد سید سبط اصغر نقوی، جس کا نام آپ نے جون اولیاء سنا ہوگا، جون اولیاء اس کا نام سبط اصغر نقوی تھا، اس کی جتنی بھی آپ نے نظمیں یا غزلیں دیکھی ہوں گی، مطلب وہ زیادہ باتیں مفصل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں کتنا پیارا شعر ہے، داستاں ختم ہونے والی ہے، ٹھیک ہے جی، کس لیے دیکھتے ہو آئینہ، تم تو خود سے بھی خوبصورت، مطلب 3 4 باتیں اسے لکھی ہیں، لیکن کم از کم اس میں وزن ہے، وہ شاعری آج کے دور کی شاعری سے بالکل مختلف ہے۔ تو ایک ہے لمبی باتیں ہو جائیں گی، ایک ہے آزاد نظم جس میں آپ کو کافی ردیف بحر کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، ایک ہے پابند نظم جس میں کافی ردیف اور بحر کی پابندی کی جاتی ہے۔ امید ہے باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، دعا میں یاد رکھیے گا، بہت شکریہ۔